So students, this was yesterday's homework, and this was the first question. The position, or you can say of the particle at time t along a straight line, moving along a straight line, is given by this equation, this expression. So dx by dt, put the value of alpha minus beta t plus gamma t square. So that is equals to d alpha by dt minus d by dt of beta into t minus d by dt of gamma into t square. Okay, this will be equal Yes, to, sir. so this will be equals to d alpha by dt, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, 0. माइनस बीटा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आ जाएगा dt by dt, माइनस गामा बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया d by dt of t square. Now this is equals to, अब आपका dx by dt तो आ गया, यानी कि आपकी क्या आ गई है, वेलोसिटी. अब क्या करेंगे एक्सेलरेशन निकालने के लिए, dv by dt, दिस इक्वल्स टू d by dt ऑफ, अच्छा ये तो अभी आपने कंप्लीट किया नहीं, इसको पहले कंप्लीट कर लो. सर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना? यस, सर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना? पॉजिटिव गामा से कहाँ पर, गामा से आगे. सॉरी, यस, थैंक यू. Positive students, definitely, thank you. So this equals to minus beta dt by dt is 1 Yes. Yes, sir. plus gamma into t square का differentiation 2t. 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 Then अब यहाँ पर आप this is v की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, माइनस बीटा प्लस 2 गामा t. Okay, so this will be equals to d by dt of minus beta plus d by dt of 2 gamma t. This is equals to, so minus derivative of constant number 0. plus, now 2 gamma is constant, it will come out and you will left with dt by dt, and this equals to dt by dt is what, to 2 gamma. So acceleration is 2 gamma. Okay, Okay, sir. any other problem? Now let us just revise the graphs that we have in our foundation book. So this is displacement time graph, and so this is displacement time graph of various types of motion of a body, and so these are the 4 graphs which are given to you. All are displacement time graph. Now this graph, first graph is for a stationary body. Okay, if the body is stationary and body is not moving, so for a stationary body, the displacement time graph of a straight line AB is parallel to the time axis. So obviously the displacement remains the same, axis constant means your position is constant. The slope of straight line AB, what is the slope of this graph tells you, displacement time graph. So slope is change in y-axis upon change in x-axis, that is tan theta. Yes, so change in y-axis is your displacement and x-axis is your time. So change in y-axis by change in x-axis, y-axis is your displacement, x-axis is time. So
Displacement upon time is Velocity. velocity. So this graph tells you the velocity. So what is the slope of this graph? What angle is it making with? Slope is nothing but tan theta. So what angle is it making with x-axis? 0. So slope is tan 0, that is 0. Okay? Because there is no change in x-axis. There is change in y-axis, but there is no change in x-axis. So slope is 0. Slope is 0 means velocity is 0. Okay? Next graph. Here the slope is constant. So what is the equation? Y is equals to mx plus c, right? And s displacement is given by ut plus half at square. That's your equation. Now tell me, if what the slope is constant or is it changing? Sir, constant. So this is angle theta. So slope is constant. It means what? Slope की जगह क्या लिख दे word? Velocity. It means velocity is constant. Slope or velocity are interchangeable word. So slope is constant means velocity is constant. If velocity is constant, what will be the acceleration, students? 0. 0. So if acceleration is 0, this term will be removed. And you are left with s is equals to ut. UT. Is this clear? And see, compare this with equation y is equals to mx plus c. Tell me, what is y equals to in this equation? S. So S. What is m equals to? U. What is x equals to? T. What is c equals to? Acceleration. 0. C is constant. Okay. What is c? Put x equals to 0. In y is equals to mx plus c, put x equals to 0. What will you get? This term will be Constant. y is equals to c. So always you have a coordinate. This c is nothing but it's a point 0 c. Is this clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So when x equals to 0, what is the value of y? That is this c. What is this c? This is the value of c when x is equals to 0. Is this clear? Yes, sir. So here when x is equals to 0 means time is equals to 0, displacement is also 0. So that is why constant, this is also known as y-intercept. Okay? Okay, sir. Y-intercept. Intercept. Is this clear, students? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Now, when a body is moving with constant velocity, the displacement time graph will be a straight line. Okay. So this is uniform motion. What is this? Uniform motion. Greater is the slope of the straight line, greater will be the velocity. अगर मैं इसको ये बना दूं, ये मेरा A था, this is B, this is C. सबसे ज्यादा velocity किसकी है? B. Sir. यहाँ खुद देखो ना आप, U, ये यहाँ से पता लग रहा है आपको, U जो है वो स्लोप है. हाँ, किसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा? A की, B की या C की? B, sir. B, क्योंकि B का स्लोप सबसे ज्यादा है ना? इसका ढाल सबसे ज्यादा है ना? Yes, sir. तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा है. A का ढाल उससे कम और C का सबसे कम. और अब आप ये देखो, अभी आपको पता लगेगा. ये एक पर्टिकुलर टाइम था T. C कहां पर था? डिस्प्लेसमेंट यहां था, मान लो 1 मीटर. A कहां था? मान लो 2 मीटर. B कहां था? 3 मीटर. समझ में आ गई बात आपको? दोनों जीरो पे स्टार्ट हुए, लेकिन एक की डिस्प्लेसमेंट कितनी है? सिर्फ 1, दूसरे की 2 और इसकी जिसका सबसे ज्यादा स्लोप था उसकी 3. चेंज इन 1 यूनिट. चेंज इन 1 यूनिट ऑफ एक्स एक्सिस.
यानी कि चेंज इन 1 यूनिट ऑफ टाइम. व्हाट इज द चेंज इन y एक्सिस? दैट इज योर स्लोप. इज दिस क्लियर? एक यूनिट चेंज होने पे Yes, sir. y एक्सिस में कितना चेंज है? तो एक पर्टिकुलर टाइम पे आप देखोगे तो जिसका स्लोप सबसे ज्यादा है उसकी डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा, यानी कि उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा. सो ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ग्रेटर विल बी द वेलोसिटी. आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पॉइंट, when a body is moving with constant acceleration, तो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है ये. दिस इज नॉट यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है. क्या है? Uniform acceleration. Is this clear? This is not a uniform motion. This is not a constant velocity case. अब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब जो स्लोप है वो सेम नहीं होगा. स्लोप क्या हो रहा होगा? चेंज होगा. या तो इंक्रीज होगा जैसे ऊपर वाले केस में, नीचे वाले केस में स्लोप क्या हो रहा है? Decrease. आगे बात समझ में? दोनों केसेस में स्लोप पॉजिटिव है. कैसे पता लगा? अगर टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है. इसमें भी टाइम इंक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, यानी दोनों इंक्रीज तो स्लोप पॉजिटिव. आई कुछ बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर स्लोप इज चेंजिंग मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग. तो S इज इक्वल्स टू, आपका फॉर्मूला S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो अब इस केस में आपके पास ये दे रखा है S इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर. समझ रहे? जो ये S इज इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर, ये इसका मतलब 0 से स्टार्ट है. ओके, t0 डिस्प्लेसमेंट 0, हाफ at स्क्वायर दे रखा आपको. इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है इस केस में? 0. ओके. Yes, sir. Yes, sir. तो द स्लोप ऑफ किसी भी टाइम पर आपको स्लोप क्या बताएगा? जिस भी टाइम पर आपको स्लोप क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसमें तो इंस्टेंटेनियस बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसमें तो एवरेज वेलोसिटी भी वही है, इंस्टेंटेनियस भी वही है. यूनिफॉर्म मोशन में तो क्योंकि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एवरेज भी वही है, इंस्टेंटेनियस वही है. लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसलिए इसमें इस केस में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलग होगी, एवरेज अलग होगी. क्लियर और नॉट क्लियर? अब इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? स्लोप इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? Increase. स्लोप इज इंक्रीजिंग मींस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नीचे वाले केस में स्लोप इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? Decreasing. तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. Decreasing. ओके. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, बट इट इज इंक्रीजिंग एट स्लोप इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. इंक्रीज नहीं हो रही, स्लोप इज डिक्रीजिंग. स्लोप का मतलब क्या है? वेलोसिटी. सो स्लोप इज डिक्रीजिंग मींस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. तो इस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है. कैसे पता लगा सर? देखो यहां से देखो आप, इसने ये फर्स्ट सेकंड टाइम है, उसके बाद ये सेकंड. यहां एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इतनी थी, अगले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कम हो गई. हुई या नहीं हुई? Yes, sir. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम. तो ये है बैंड अपवर्ड्स और ये है बैंड डाउनवर्ड्स. इज इट डन स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो आप ग्राफ को समझना आ गया ना आपको? कैसे उसको रीड करना है, कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है ग्राफ से.
नेक्स्ट इज, वही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, दो ग्राफ और हैं। तो मैंने बॉडी इज मूविंग विद इनफाइनाइट वेलोसिटी, यानी इनफाइनाइट स्लोप। तो स्लोप क्या हो गया आपका? इनफाइनाइट। इस केस में कैसा स्लोप हो गया? Infinite. तो विच इज नॉट ए, कैन such a motion is possible? No, sir. No, sir. So motion of body is never possible. तो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या ये पॉसिबल है मोशन? तो अगर स्लोप इन्फिनिटी है, यानी कि वेलोसिटी इन्फिनिटी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। व्हेन ए बॉडी रिटर्न, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स? मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए स्पेशल सिंबल है एक्सेलरेशन ये g, उसी तरह स्पीड ऑफ लाइट के लिए भी स्पेशल सिंबल है c। तो c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। समझ रहे हैं? मैक्सिमम किसी भी चीज की स्पीड इतनी हो सकती है। ओके Yes, sir. उसके बाद a body returns back towards the original point of reference while moving with negative uniform negative velocity। तो यहां पर बॉडी जो है वापस देखो, टाइम इंक्रीज लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज। देख रहे हैं आप? Yes, sir. तो स्लोप क्या Yes, होगा sir. फिर? स्लोप विल बी नेगेटिव। इज दिस क्लियर? तो s इज इक्वल टू Yes, sir. माइनस वी टी। तो इसमें जो है, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट। तो ये था आपका रेफरेंस पॉइंट। और जैसे मैंने बताया कि भाई ये मान लो आपका स्प्रिंग है और यहाँ एक ब्लॉक है, तो हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, इधर स्ट्रेच कर दिया। तो जब ये वापस आएगा तो डिस्प्लेस वापस अपनी मेन पोजीशन पर आएगा। ये सपोज की मेन पोजीशन है, तो वापस जब आएगा इधर से इधर, तो यहां से यहां तक का जो मोशन है वो ये दिखा रखा है वापस रेफरेंस पॉइंट पे आने का। ठीक है? So the displacement time graph is an oblique straight line AB making an angle theta greater than 90 डिग्री। कल आपने किया था ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ऐसे सीखा आपने? कैसे सीखा है? ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। Sir, after school to college. After school to college. बिल्कुल सही बात है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एंगल कितना है? ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? मोर देन 90। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पे tan थीटा क्या है? मोर देन, Negative. तो दैट इज tan थीटा इज नेगेटिव, मींस द स्लोप इज नेगेटिव। ऐसे समझ लो। देखो कितने तरीके से एक ही बात को समझ सकता। tan थीटा से निकालोगे तो नेगेटिव आया। टाइम इंक्रीज डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज, एक चीज इंक्रीज दूसरी डिक्रीज तो नेगेटिव आया। और तीसरा मैंने बताया था आप साइकिल चलाओ, किससे? हमेशा राइट टू लेफ्ट। अगर आप नीचे जा रहे हो तो स्लोप नेगेटिव है, अगर आप ऊपर जा रहे हो तो स्लोप पॉजिटिव है। राइट टू लेफ्ट साइकिल चलाओ। तो कितने तरीके बता दिए आपको? डन। Yes, sir. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलो, तो when a body is moving with constant velocity, अब वही ग्राफ आ गया सेम टू सेम जो पहले आपके आए थे, बस अब चेंज हो गया है। तो आई थिंक अब आप इजीली कर सकते हैं इनको। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये किसका ग्राफ हो गया? यूनिफॉर्म मोशन का। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था यूनिफॉर्म मोशन का, तो आपने देखा था वो ग्राफ अलग था। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ये वाला ग्राफ था। ठीक है? तो अगर आपका
यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, तो आपने स्लोप क्या कर दिया उसका, कांस्टेंट। तो ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर। तो ये भी यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है और ये भी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो स्लोप कांस्टेंट कर दो, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी को ही कांस्टेंट कर दो। इज दिस क्लियर? यानी कि उसका स्लोप क्या कर दो, 0 कर दो। ओके स्टूडेंट्स। तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, यानी कि इसका स्लोप, 0. इस बार स्लोप जो है वो क्या बताएगा आपको, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इज दिस क्लियर? वेलोसिटी टाइम का स्लोप। तो चलो अब वही जैसे पिछले क्वेश्चन में था, S इज इक्वल टू यू टी था ना, इसमें क्या आ गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू a इंटू टी, तो y इज इक्वल टू mx। तो इसका स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन। तो y एक्सिस पे है v, x एक्सिस पे है t, तो y इज इक्वल टू at, क्योंकि इसका स्लोप a है। m की जगह a लिख दो, y की जगह v, x की जगह t, प्लस c कितना है यहाँ पे, पुट x इक्वल टू 0, टाइम इज इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना। Yes, sir. तो c इज y इंटरसेप्ट 0 है। अगर यहां से ग्राफ चलता ना तो इसका ये वैल्यू आती c। इज दिस क्लियर? Yes, sir. तो आप देखो इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी और ये चला, लेकिन इसका स्लोप, ये पार्टिकल बी है, किसका स्लोप ज्यादा, ए का या बी का, So A. ए, यानी कि ए की एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो इसीलिए बी की इनिशियल वेलोसिटी किसकी ज्यादा थी, B. बी की। तो लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब दोनों वेलोसिटी क्या हो गई, सेम। क्यों? क्योंकि ए का एक्सेलरेशन ज्यादा था, बेशक वो 0 से चला, लेकिन उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा तेज से बढ़ रही है, और बी की कम तेज से बढ़ रही है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम थी इस पर्टिकुलर टाइम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स ये बात? Yes, sir. तो ग्रेटर द स्लोप, greater will be the instantaneous acceleration. Okay. When a body is moving with constant acceleration and its initial velocity is not 0, ये आ गया ना भाई केस मैंने जो अभी ऊपर आपको बताया। ओके। अच्छा, इस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा आपको, इतने पर्टिकुलर टाइम में क्या, Displacement. डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसका यूनिट होगी मीटर पर सेकंड, इसकी यूनिट होगी सेकंड। तो जब आप एरिया निकालोगे, ट्रेपीजियम है तो हाफ इंटू हाइट आपकी किस में आएगी, सेकंड्स में आएगी, कुछ भी आ सकता है। और सम ऑफ पैरेलल साइड ये किस में आएगा आपका, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया तो क्या आ गया, ओके। तो इसमें हम y एक्सिस और x एक्सिस यूनिट्स को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर डिवाइड करोगे यूनिट्स को y एक्सिस और x एक्सिस की तो मिलेगा स्लोप, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्लोप। और अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एरिया, तो यहां से आपको मीटर आया तो डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्लियर होगा स्टूडेंट्स ये दोनों चीजें? Yes, sir. Yes, sir. अब उसके बाद when a body is moving with increasing acceleration, तो velocity time graph is a curve which is bend upward। तो आप देखो velocity time graph का स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन। तो आप देख रहे हो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही, Yes, sir. तो क्या इसमें आपकी जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन इस ग्राफ में काम करेंगी, अरे करेंगी क्या काम, क्या आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी लगा सकते हो इस क्वेश्चन, इस ग्राफ के अंदर? नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं। आई कुछ बात समझ में? Yes, sir. अब एक बात इस तरह रखा, v इज इक्वल टू माइनस ए टी, क्या ये सही है, ये इक्वेशन जो लिखी है इसने, v इज इक्वल टू माइनस ए टी?
भाई यहाँ पर बाय इंटरसेप्ट ये नहीं आएगा क्या? यू भी तो होना चाहिए इसमें। v इज इक्वल टू Yes, यू, sir. यू माइनस 80, तो गलत है, इसको ठीक कर ले। अरे यू होगा नहीं होगा इसमें, इंटरसेप्ट है ना बेटा। t इज इक्वल टू 0 पुट करो, t इज इक्वल टू 0, तो v किसके इक्वल है? u के। Okay. तो u है इसके अंदर। ओके Yes, sir. Yes, sir. भैया, ऐसा ही तो है जैसे ये केस है, सेम टू सेम ऐसा ही तो केस है ये। डन। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर भी वही एंगल बनाओगे तो ये ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, और tan जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो इसका स्लोप नेगेटिव। साइकिल चला लो, टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो किसी भी केस में आप ले लो, स्लोप इज नेगेटिव। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. कुछ अंडरस्टैंडिंग पहले से इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही? अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई है पहले से कुछ? Yes, sir. चलो, अंडरस्टैंडिंग तो बेटर होनी चाहिए पहले से। अब है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन कांस्टेंट ये बना दिया, इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है। व्हेन ए बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है। तो a इज इक्वल टू के टी, तो k क्या है यहां पर? k इज, अरे स्लोप है ना एक्सेलरेशन का, क्या होगा स्लोप? Sir, जर। k इज जर। झटका लगता है ना आपको एकदम से जब कार चलती है, तो एकदम से एक्सेलरेशन चेंज तो हो रहा है, एक्सेलरेशन एकदम चेंज होता है। ठीक है, चलो, तो ये पॉजिटिव हो गया, और अगर डाउनवर्ड्स था तो ये नेगेटिव हो गया जर्क इसमें। ठीक है, एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव नहीं है इसमें, जो यहां लिखा होता है उसके नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं होती, स्लोप के पॉजिटिव नेगेटिव की बात होती है। ठीक है ना? तो Yes, sir. तो जर्क Yes, इज sir. नेगेटिव। Yes, sir. अब जो काम की बात है इसके अंदर, वो क्या है सर? इसमें काम की बात, जो काम की बात है जो अब तक हमने किया इसमें, आपको क्या करना है, जैसे हमने ग्राफ बनाए थे, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो उसका जो ग्राफ था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ क्या था? ये था ना बेटे। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में आपका ग्राफ ये है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा? इसका स्लोप ये है, समझ रहे हैं? v क्या है? स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। ओके, Okay, sir. अब एक्सेलरेशन क्या है? स्लोप ऑफ vt VT ग्राफ। graph. तो वो यहां प्लॉट करोगे आप स्लोप को, तो ये क्या है? स्लोप कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ग्राफ कैसे बनेंगे? यूनिफॉर्म मोशन के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉट मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन गए। Yes, sir. और यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ कैसे बनेंगे? ये एस टी बनेगा, और ये वी टी बनेगा, और ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ए टी में क्या बनेगा इसका ग्राफ? ये यहां पर, ये टाइम इज 0, एक्सेलरेशन इज डन।
Yes, Yes, sir. sir. ये बात समझ में आई नहीं आई? Yes, sir. अब ध्यान से समझो अगली बात क्या है। इसका एरिया, ये देखो, इस टाइम पर एरिया कितना था? इतना। अगले टाइम पे एरिया कितना होगा? इतना। अगले टाइम पर जो एरिया इंक्रीज हो रहा है वो सेम है या नहीं है? Same है. तो ये जो V जो आप देख रहे हो, दिस इज एरिया ऑफ एटी ग्राफ। तो V जो है स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ है और एरिया ऑफ एटी ग्राफ है। 80 ग्राफ है। तो यहां तक जो एरिया बना वो ये आया आपके पास। सपोज ये एरिया बना 2 मीटर पर सेकंड आएगा, तो यहां ये 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद फिर एरिया 1 सेकंड के बाद हो गया ये 1 सेकंड। सपोज ये 2 सेकंड के बाद कितना हो गया एरिया? 4। बिल्कुल देखो हर सेकंड में सेम एरिया इंक्रीज हो रहा नहीं हो रहा? तो यहां भी Yes. समझ रहे हैं कुछ बात? तो V क्या है? स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ एंड एरिया ऑफ एटी ग्राफ। तो V क्या है? स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ एंड एरिया ऑफ एटी ग्राफ। आगे कुछ बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसका एरिया यहां प्लॉट करोगे। इसका जो एरिया है वो आप यहां प्लॉट करोगे। तो S जो वो क्या है? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। समझ गए? ये जो एरिया बना ना यहां, एक बात बताओ, यहां फर्स्ट सेकंड में इतना एरिया बना, सेकंड सेकंड में देख रहे एरिया बढ़ गया। तो यहां तो कांस्टेंट तरीके से एरिया बढ़ रहा था ना। यहां जो ग्राफ बढ़ रहा है एटी वाला, वो कांस्टेंट तरीके से बढ़ रहा है ना एरिया बेटा। Yes, sir. तो इसीलिए आप कांस्टेंट स्लोप आए यहाँ पे, क्योंकि एरिया आप यहां प्लॉट कर रहे थे। अब इसका एरिया यहां प्लॉट करोगे आप, तो फर्स्ट सेकंड में मान लो एरिया था 1, तो सेकंड सेकंड में 2 थोड़ी होगा, कितना होगा? 4। ये देखो यहां इतना था, तो अगले सेकंड में एरिया ये हो जाएगा ना आपका। आई कुछ बात समझ में या नहीं आई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये अगर वन पार्ट था तो ये 3 पार्ट्स हैं, तो टोटल 4 हो गए। अब मुझे बताओ 3 पे क्या होगा? 9। आप निकाल के देख लो, एरिया निकालना तो ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के तरीके से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप जो है बेस को 1 इंक्रीज करोगे, तो मान लो ये x था आपका, आप इसे +1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये हाफ इंटू ये बेस x था आपका मान लो, और हमने उसमें क्या कर दिया? हाइट भी तो इंक्रीज हुई है, तो हाइट भी इंक्रीज होगी और ये भी इंक्रीज होगा, दोनों इंक्रीज होंगे। तो हाँ मान लो 1 1 यूनिट दोनों इंक्रीज हो गए, चलो हम 1 1 ही मान लेते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म है, 1 1 स्लोप है 45 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एच प्लस 1, तो एक्स एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एच, तो हाफ इंटू एक्स एच, ये तो ये हो गया आपका, प्लस हाफ इंटू एक्स प्लस एच प्लस 1। देखो इतना ज्यादा मिलेगा अगली बार आपको एरिया, समझे? Yes, sir. तो एरिया जो मिलेगा वो आपको इस रेट से इंक्रीज होगा आपका। तो ये एरिया ऑफ एस क्या है? एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो जो एरिया बना वो यहाँ प्लॉट कर दिया। फिर 3 तक जो एरिया बनेगा ये 9 बनेगा यहाँ, अगर ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x। तो और निकाल के देखना आप, ये होमवर्क है आपका। y इज इक्वल टू 2x, तो पुट करना यहाँ वैल्यू और यहाँ ग्राफ बनाना, फिर इसका एरिया निकाल के यहाँ प्लॉट करना। समझ गए? Yes, sir.
और Yes, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 2x, ये y इज इक्वल टू x स्क्वायर, ये ग्राफ है तीनों, ठीक है। यानी कि यहां एक्सेलरेशन 2 था और ये y यहां v इज इक्वल टू 2x था और यहां पर x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहां v इज इक्वल टू 2t और यहां a इज इक्वल टू, तो ये 2t और ये तो स्टूडेंट्स ऊपर से नीचे आओगे तो स्लोप, ऊपर से नीचे आओगे तो स्लोप, और slope, स्लोप से ऊपर जाओगे तो area. आ गया कंसेप्ट सबको समझ में। Yes, sir. Yes, sir. चलो शैल वी मूव फॉरवर्ड नाउ। Yes, sir. Yes, sir. चलो कर लो फिर क्वेश्चंस। अब आप स्टूडेंट्स इसे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। फाउंडेशन बुक है, पता है ना आपको ये, एंड आई विल सेंड द क्वेश्चन जो देयर आर सम अदर स्टूडेंट्स जिनके पास, दोज हु डोंट हैव दिस बुक, I will still we have time, but I am telling you that we will be doing the questions. तो स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चंस हैं। चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ टू कार्स ए एंड बी। ओके स्टूडेंट्स, ये दो कार्स हैं विच स्टार्ट फ्रॉम सेम प्लेस एंड मूव अलोंग ए स्ट्रेट रोड। स्टूडेंट्स मैं होमवर्क आपको एडवांस में बता देता हूं। फाउंडेशन बुक है ना सबके पास? Yes, sir. Yes, sir. तो फाउंडेशन बुक जो है उसका, उसकी जो इलस्ट्रेशन है ये 11 है, उसके बाद इलस्ट्रेशन 12, इलस्ट्रेशन 13, इलस्ट्रेशन 14। अगर जिसके पास बुक नहीं है मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ये चारों इलस्ट्रेशन आपको करनी है। तो एक अभी हम क्लास में कर लेंगे 11 और 12, 13, 14 ये आपका होमवर्क है। तो एक बार इसको ग्राफ्स को दोबारा से फिर से ड्रॉ कर लेना, जो इंफॉर्मेशन है यू कैन राइट अगेन कि क्या समझ में आया आपको। Very important revision. Whatever we have done in the class, you have to revise it. चलो, तो स्टूडेंट्स कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? स्लोप। तो स्लोप Yes, कैलकुलेट कर लो। स्लोप का मतलब मैंने आपको बताया एक यूनिट एक्स एक्सिस में चेंज करने पर वाई में कितना चेंज आया। तो पहले हम ए का देख लेते हैं। तो ए का 1 यूनिट चेंज हुआ तो वाई कितना चेंज हुआ? 20। तो स्लोप कितना हो गया? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये और कार बी का, ये ए लिख रखा है यहां, ये लिख रखा है कार बी, तो कार ए यहां लिखना चाहिए भाई, क्या कर रखा है ये? इसका मतलब कार जो है एक्सेलरेशन ऑफ ए इज 10, तो ए का एक्सेलरेशन 10 है, तो ये ए है, इसका मतलब ये कार ए है स्टूडेंट्स। और जो कार बी है वो यहां आप अपनी बुक में ठीक कर लो, ये ए और ये बी। तो बी का तो स्लोप आ गया 10। कहीं पर भी चेंज देख लो आप, सर मुझे कहीं पर भी चेंज, सर मुझे यहां इस टाइम पर देखना है, ये यहां 3 to 4 में। तो बेटे 3 to 4 में देख लो बी में कितना चेंज आ रहा है। ये यहां से यहां ना, तो कितना चेंज आया? 20 है या नहीं है? 1 यूनिट चेंज करने पर इधर Yes, sir. यहां 1 यूनिट चेंज किया तो यहां कितना चेंज है? 20। अब ए का बताओ मुझे, ए का 1 यूनिट चेंज करो। अब आप ए का 1 यूनिट चेंज किया तो कितना चेंज आया? 10। कहीं भी देख लो, यहाँ ए का 1 यूनिट चेंज किया टाइम का तो वाई एक्सिस पे चेंज कितना आया? अरे 10 है या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. स्लोप निकालना आ गया फटाफट।
Yes, sir. Yes, sir. और उसके अलावा जो इन्होंने तरीका बता रखा है, अब इनका भी तरीका देख लो, ये क्या कहना चाहते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात, यहाँ ए नहीं है, ये बी का स्लोप है और ये है कार ए का स्लोप। पहली बात तो ये होगी, क्लियर। सेकंड थिंग, अब बी देखो, यहां से यहां इतने टाइम में, यानी कि 3 सेकंड में 1 से 4 सेकंड है ना, तो टोटल टाइम कितना हो गया 3, और ये टोटल कितना हो गया, ये थीटा निकालना आपको। तो tan थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड कितनी आपकी, ये 60 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय बेस चेंज इन वाई एक्सिस 3 सेकंड, तो कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से समझ आगे बात समझ में। Yes, sir. तो स्लोप इज 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सर मुझे निकालना है ए का, तो ए का देख लो, ये आपकी ए कार, ठीक है। तो ए कार तो यहां तक ये बेटे, ये चलो ये थीटा निकालना आपको। तो ऑपोजिट साइड कितनी है, 80. स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, ऑपोजिट साइड इज 80। अरे भाई 80 है ना ये, Yes, sir. Yes, sir. तो 80 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 8 सेकंड, तो कितना हो गया 8 10 meter per second, sir. 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया इसने कैसे निकाला। Yes, sir. लेकिन आपके पास स्मार्ट तरीका है ना, 1 यूनिट चेंज करने से इसमें कितना चेंज आया 10, समझ गए। तो इसमें 1 यूनिट चेंज करने से कितना चेंज आया में 20, 20. तो बी में 20, ए में 10। चलो डन। Yes, sir. तो इसीलिए तुम ये मत सोचा करो कि बुक जो है इसमें भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बुक में भी मैं आपको हर जगह बता रहा हूं कि काम करने का तरीका, सोचने का तरीका बिल्कुल एज इट इज। बुक तो सिर्फ एक गाइडलाइन है, समझ रहे हैं ना। आप जितना अपने दिमाग सब सोचेंगे तो फिजिक्स उतनी ज्यादा आपको आएगी। क्रॉस चेक करते रहा करो चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेशन ऑफ कार बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। ये स्लोप यूनिफॉर्म है, जब स्लोप यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन सेम होगी या नहीं होगी। Yes, sir. भाई यहां पर अगर स्लोप सेम है तो इंस्टेंटेनियस भी वही है और एवरेज भी वही है, ठीक है। ये तो बी वाला पार्ट था, तो कितनी एक्सेलरेशन है 2 से 4 सेकंड। हमने 2 से 4 सेकंड बजाय हमने कहां से कहां निकाल ली थी, सीधी 0 से 1 से 3 निकाल ली थी। अगर 2 से 4 निकालनी है तो 2 से 4 निकाल लो, ठीक है। तो 2 से 4 निकालनी है बी कार की, दो तरीके से तो बता दी बी कार की शुरू से लास्ट तक, आंसर तो सेम आ रहा है। अब 2 से 4 सेकंड ये आपकी कार बी, ये थी ए, तो बी कार 2 से 4 सेकंड देखना भाई, यहां से यहां, तो क्या बना आपका, ये बन गया आपका ट्रायंगल, ठीक है कि नहीं। ये एंगल हो गया थीटा। तो स्लोप इज इक्वल्स टू एम इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया 60 माइनस 20। तो स्लोप कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, स्लोप इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। इसका मतलब क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इज दिस क्लियर। Yes, sir. तो y2 ये पॉइंट्स लिखो यहां पर, ये जो आपका ट्रायंगल बना ये पॉइंट्स क्या थे, इस पॉइंट पर 460 यही थे ना, और यहां पर Yes, क्या sir. पॉइंट थे आपके 220। तो ये पहले वाले पॉइंट है 220, तो इनको बोलेंगे x1 y1। ये बाद वाले पॉइंट है तो इनको क्या बोलेंगे x2 y2। तो y2 माइनस y1 60 माइनस 20 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 4 माइनस 2, तो क्या है बेटा 40 अपॉन 2 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन। ये कैसे है, Yes, sir.
तो इसीलिए आप आंसर्स को कभी भी फिजिक्स में किसी बुक से कॉपी पेस्ट मत किया करो, उसको अपने आप जो ढंग में सिखा रहा हूं उस सोच से सोचना शुरू करोगे तो लाइफ बनेगी तुम्हारी। अगर तुम सोचोगे बुक्स में से कॉपी पेस्ट कर लूं तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, फिर सारी दुनिया वही करती है। नेक्स्ट, पॉइंट्स ऑफ द टाइम एट विच बोथ कार्स हैव सेम वेलोसिटी। अभी बताया था ना मैंने कंसेप्ट, तो कहां पर है सेम वेलोसिटी? तो 2 हाँ, एट 2 सेकेंड, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब डिस्टेंस ट्रेवल के लिए क्या निकालोगे आप? एरिया। अरे हाँ या ना? विच ऑफ द टू Yes, कार्स इज अहेड आफ्टर 8 सेकेंड, और कितना आगे है? तो 8 सेकेंड तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसका एरिया। तो 8 सेकेंड में ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये एरिया आ गया। बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये बी है बेटा, ये बी है, बुक में ठीक कर लो बार बार कर। और ये किया, क्लियर हो गई बात? yes sir अरे निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. तो कार कितने आगे है, बी 8 सेकंड में वो आपका निकल जाएगा एरिया से। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान नहीं दी हमने, इसमें थोड़ा सा एरिया यहां तक नहीं है इसका। ये जो ए है ये तो यहां से स्टार्ट है, लेकिन जो बी है, बी तो यहां से, ये देखो ये है ना बी, तो कहां से कहां तक? विच ऑफ द टू कार इज अहेड आफ्टर 8 सेकेंड एंड बाय हाउ मच? तो हाफ इंटू 80 इंटू 8 हो गया इसका, तो कार ए का, तो ये तो 0 से चली थी, तो ये 80 और ये 8, तो हाफ इंटू 80 इंटू 8 ये आ गया। और बाय बी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी, डी ए बी सी, ये क्या लिख रखा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, ये तो स्टूडेंट्स गड़बड़ है कुछ यहाँ तो, है ना? डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी, हाँ ये बात। तो जब कार बी है तो उसका तो यहाँ 8 सेकंड तक तो उसका ग्राफ ही दे रखा, आपको कहां दे रखा है 8 सेकंड तक ग्राफ? आपको जो ग्राफ दे रखा है वो सिर्फ कहां तक दे रखा है? अरे ये बताओ ना 4 मुझे, सेकंड तो मुझे एक बात बताओ ना, जब एक में कितना इंक्रीज है 10, ठीक है, तो यहां से यहां तक कितने सेकंड हो गए? 7। क्लियर? तो वही है, तो v इज इक्वल टू यू टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, u कितना है 0, तो v कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टी, इसका एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना कह रहा है ये 7 सेकंड हो रहा है ना टाइम, तो 2 इंटू 7, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी आपकी 14 मीटर पर 14 सेकंड। तो एरिया निकालना है, तो s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये भी तो फॉर्मूला है कि नहीं? yes sir तो हाफ इंटू यू प्लस वी बाय 2 इंटू टाइम, क्योंकि ट्रेपीजियम का एरिया यही बनता है, इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को यूज कर लिया। ओके, आप ये यूज कर लो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो भी आपका सेम आंसर आएगा, निकाल के देख लो। u क्या 0, तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर एंड हाफ इंटू ए कितना आपका, अरे 2 है ना भाई, 2 और टाइम कितना लिया 1 से 8 7 सेकंड, तो कितना 2 से 2 कट गया, 7 का स्क्वायर है 49 49 मीटर्स। ये क्या बात yes हुई, sir ये यही बात बन रही है। और यहां से कितना आएगा, हाफ इंटू यू कितना है 0 0 प्लस v कितना है, नहीं नहीं कुछ गड़बड़, क्या हो रहा है इसमें? हाँ v कितना निकाला था हमने फाइनल 14 बाय 2 yes sir इंटू टी 7, तो 7 इंटू 7 49 मीटर, तो इससे 49 आ रहा है और यहाँ से 49 आ रहा है। इसे क्या किया, हाफ इंटू
7 + 4 सेकेंड, और ये 60 कर दिया। ओहो, ये 60, 7 + 4, ओहो स्टूडेंट्स, समझिए इतनी देर से हम कंफ्यूज हो रहे थे। ग्राफ तो सही है, ये हमने किया भी सही है हमने। देखो अभी तक हम ग्राफ को नहीं, इसको समझ नहीं पाए ठीक से, समझ नहीं पाए भाई, समझ नहीं पाए ग्राफ ठीक से। असल में कुछ हमें दिखाई नहीं दिया। ये ग्राफ स्टूडेंट्स यहां से ऐसे है भाई, ये ऐसे और इसके बाद ऐसे, ये है, ये कार बी ठीक लिख रखा है इसने, और ये है आपका कार ए का ग्राफ। ये इज दिस क्लियर? हम इसी को आगे समझ गए कि भाई ये आगे जाएगा ऐसे, ठीक है, हम वो निकाल रहे थे। क्लियर? और वेलोसिटी भी हमने कुछ ठीक नहीं निकाली। v इज इक्वल टू a इंटू टी। एक्सेलरेशन हम 2 लिख रहे थे, एक्सेलरेशन 2 नहीं है भाई, 20 है। अरे है या नहीं? 2 नहीं लिख रहे थे हम बार बार, 2 नहीं था वो, 20 था, मैं गलती से 2 लिख रहा था। ठीक है, समझ गए बात को? Yes, sir. अब ये ग्राफ अब समझ में आया? तो ग्राफ ठीक है भाई, ये ग्राफ में दिक्कत नहीं है, ठीक बना रखा है, बंदा समझदार है ये। ओके, हम ही गलत समझ रहे थे। ये देखो, ये जो ए लिख रखा है ना, ये पॉइंट ए है, और ये जो बी लिख रखा है ये पॉइंट बी है। ये कार बी, यानी कि ये ग्राफ है कार बी का, बिल्कुल ठीक है। और ये ग्राफ है अपना कार ए का, इसीलिए उसने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिया। और इसका जो एरिया लिया, मैं बार बार ट्रेपेजियम क्यों ले रहा है? ये साइड और ये साइड, सम ऑफ बोथ साइड इंटू हाइट, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर? ये 330, ये 320, ये 10 मीटर्स डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है कार बी का। ओके स्टूडेंट्स, चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। I will send you the Thank you, sir. rest remaining part of this graph. Okay? Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, God bless you all. Take care.